और जब हम अगर हम हीट अगर टेम्परेचर का जब डिग्री लिखेंगे तो हम लिखेंगे 25 डिग्री, आगे सी भी लिखेंगे, तो ये यूनिट अलग हो जाएगा। इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल एंगल पढ़ रहे हैं। केवल हम एंगल वाली डिग्री पढ़ रहे हैं। Point in exactly the same direction. Then let's put one ray directly on top of the other one so it looks like there's only one ray there, even though there's really two. Now let's take the ray on top and rotate it just a tiny amount counterclockwise. This point on the ray will be our axis or center of rotation. अब देखो ये It's इसके just इर्द like गिर्द the point at the रोटेट center होगा, of a एक clock लाइन that दूसरे stays लाइन के stationary इर्द while गिर्द the hands जाएगी। rotate around it. ये देखो रोटेट कर Our रही है। rays now form an angle that measures 1 degree. And as you can see, 1 degree is a really small angle. Very We need to small zoom in angle. on it to see that it really is an angle. In fact, you might wonder if there could be any angles smaller than 1 degree. Yep, there sure are. And we saw one just a second ago. Before we rotated our top ray, when our rays were exactly on top of each other, that was a 0 degree angle. And there's a whole range of tiny fraction angles in between 0 and 1 degree. इसका मतलब है But we aren't going to learn about अगर them in this video. एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी तो वो 0 डिग्री है। अगर बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होगी तो वो 1 डिग्री है। Instead, we're going to keep on rotating our top ray and watch the angle get bigger and bigger. This special readout here will tell us how many degrees our angle measures. देखो एंगल Now let's बढ़ते start out जाएगा। slow. 1 degree, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now let's hold it there for a second. So this is what 10 degrees looks like. 10 degrees? That's freezing. Huh. Guess you're not as smart as I thought after all. So we can see that a 10-degree angle is still a very small angle. So let's keep going, but a little bit faster this time. All right, that's 15 degrees, 20, 25, 30, 35, 40, and 45. देखा अभी ये एंगल कितना है? How big is this angle? कौन बताएगा? More than नहीं, ये वाला एंगल जो अभी बना हुआ है ये कितने डिग्री है? ये लिखा हुआ है 45 डिग्री। हाँ, अभी ये रोटेशन जो है ये वाली ये है 45 डिग्री। ओके, तो देखते रहना। अभी ये देखो, और ये दिखा रहे हैं आप लोगों को, डिग्रीज दिखा रहे हैं अच्छी तरीके से। Now 45 degrees is a special angle because it's exactly half of a right angle. If we draw a right angle in the same spot, you can see that our ray cuts it into 2 equal parts. अभी देखो ये दिखाया है, ये पूरा येलो लाइंस का जो है ये कितने डिग्री एंगल है? 90। हाँ, और 90 का हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना मिला हमारे को? 45 डिग्री। वेरी गुड। दैट मीन्स जो राइट एंगल था, ये वाला तो राइट एंगल है, राइट एंगल के 2 हिस्से कर दिए, एक ये वाला ये और एक हिस्सा ये। तो ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हो गए? ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री। हाँ, दोनों 45 के हो गए। Parts. So, if 45 degrees is half of a right angle, can you guess how many degrees a right angle is? Let's keep on rotating to see if you're right. 50, 60, 70, 80, and 90. Yep, a right angle is exactly 90 degrees. And that is super important to memorize because right angles are used all the time in geometry. Okay, do you remember from our last video that all angles less than a right angle are called acute angles? So that means that all the angles we've seen so far that are between 0 and 90 degrees, like 10, 30, 45, 60, and so on, are acute angles. But if we keep on rotating our ray past 90 degrees, we'll start forming obtuse angles because they're greater than a right angle. Ready? Here we go. 100 degrees, 110, 120,
130, 140, 150, 160, 170, and 180. Aha! Does this look familiar? Yep, it's a straight angle like we learned about in the last video. The rays point in exactly opposite directions, and the angle they form is 180 degrees. And that's also a really important angle measurement to memorize. Now before we go on, let's quickly review the important angles and regions that we've looked at so far. Our angle measurement is 0 degrees when the rays point in exactly the same direction. It's 90 degrees when they're perpendicular and form a right angle. And it's 180 degrees when they point in opposite directions and form a straight angle. In this region, between 90 and 180, we find obtuse angles. And in this region, between 0 and 90, we find acute angles. One important acute angle is 45 degrees since it's half of a right angle. All right then, let's continue rotating past 180 degrees. Our angle readout keeps getting higher, and the next... Oh yes, now we have to solve the problems. Yukti कह रही है, sir, when will you solve our doubt? That is true. तो हम भूल ही जाते हैं. 454 हो गए. So इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं. Now let us ask the doubts. I'll stop sharing. Let me ask Yukti. बताओ Yukti क्या doubt है? Let me start my video also. Okay. Yes, Yukti, tell me. Yes, sir, wait. अब युक्ति का अपना डाउट पूछेगी और किसी को सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकता है. Yes, sir, see. Sir, how to solve this problem? Let me see. Okay. Which one? 9th? Which number? 9 or 10? Which number? Sir, these are Roman numerals. So So we have to solve this. okay, so this is m divided by L multiplied by D minus C divided by XL. तो इसमें इनको आप कन्वर्ट करो. ऊपर क्या लिखा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. आगे क्या लिखा है? इन विच रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड. सो लेट अस राइट द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन फिर से दिखाना. कहाँ चला गया? या m upon L. m क्या होता है? Sir, I can say Yeah. D minus D. M is 1000. M is 1000. Wait. Sir, M is 1000. Oh, D minus C upon XL. Yes. Okay. M क्या Sir, होता है? I cannot see. Sir, M is 1000. M is 1000. Let us share the screen. Wait. Okay. ठीक है. ये तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया. Now let me share the screen. Now you can see the screen. Yes, sir. So युक्ति का क्वेश्चन क्या था? युक्ति का क्वेश्चन था. हम इस बोर्ड पे लिखते हैं. Let's use the board. Wait. The question was M upon L. L multiplied by D minus C upon XL. तो M क्या होता है? Sir, 1000. 1000 divided by L क्या होता है? Sir, L means 50. Anna is talking. 1 minute. Sir, Yes. exact. Roman numbers, you remember?
L means रोमन न्यूमरल्स बताओ। यस युक्ति, टेल मी L क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय L? युक्ति बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय L? Sir, L means 50. L means 50. Sir, L is 50. Okay, so 1000 divided by 50 multiplied Sir, by Sir, हाँ Sir, Ananya. हाँ ओके सर मेरा ना ये नेटवर्क का इश्यू हो गया, मेरा नेट एग्जैक्टली खत्म हो गया और ना तो मैं अभी हर्षल से ले लूंगी, आपने जो जो सिखाया है वो। अच्छा, तो आप YouTube पे देखना। ओके सर। हाँ, तो क्योंकि आज वैसे भी हमने क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, हम आपके सेंटर में आए थे ना, तो इसलिए लेट हो गए। तो अभी मैं इसको YouTube पे अपलोड करूंगा, उसके बाद आप देखना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करेंगे। अभी देखो युक्ति ने ये अपनी L50 होता है। ओके, और D क्या होता है? D सर D is 500 माइनस सर 500 C क्या होता है? 100 is 100 X सर X means 10 और L means 50 हाँ तो 50 हाँ, तो L के जब लेफ्ट साइड में और L होता है 40 होता है। हाँ, जब ये देखो ना जब हम लेफ्ट में लिखते हैं तो उतना माइनस होता है। जैसे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये तो 5 हो गया और 5 माइनस 1, तो इसको हम लिखेंगे 4। राइट में ले हाँ, राइट में लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा, लेफ्ट में लिखेंगे तो माइनस होगा। इसीलिए जब हम XL लिखते हैं तो X का क्या मतलब है? X का मतलब है 10 और L का मतलब है 50। तो हमने 50 के लेफ्ट में 10 लिखा तो ये 40 हो गया। 40 अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करना आएगा? नहीं, जैसे 100, ये क्या है? ये 1000 ऊपर न्यूमरेटर में है 1000 और डिनोमिनेटर में है 50, तो एक 0 और 0 कैंसिल और 100 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0। तो यहाँ पे तो 20 हो गया और इसमें देखो क्या हो जाएगा? 500 माइनस 100 कितना होता है? 400। 400 डिवाइडेड बाई 40 और ये तो हो गया, यहाँ तो 20 आ गया क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाई 50। तो 400 डिवाइडेड बाई 40 कितना हो गया? ये 0 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया ये हमारा 20 बन गया और ये 10, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 200। इज इट क्लियर? इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब ये जो लाइन होती है, ये दिस इज, जैसे ये दिस इज कॉल्ड डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन, और डिवाइडिंग लाइन का ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक प्रकार से दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑलमोस्ट सेइंग एज इफ इट इज अ ब्रैकेट। दैट मीन्स कि जहां पे हमने डिवाइडिंग लाइन लगाई ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, इसको आपने ग्रुप रखना है। तो इनको आपस में मिक्स नहीं करना ग्रुप को, यानी कि ये एक ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स को मल्टीप्लाई किया। तो ग्रुप्स को जैसी, जब ये यहां से यहां तक डिवाइडिंग लाइन है तो ये पूरा एक ग्रुप अलग मान लेना और ये ग्रुप अलग मान लेना, तो इनको अलग अलग सॉल्व करना। ठीक है? तो इसको इसके साथ नहीं करना, पहले इस ग्रुप को अलग से करो और इस ग्रुप को अलग से करो, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करो।
ओके, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना, जो डिवाइडिंग लाइन है वो इस पूरे को ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रुप। ग्रुप। ये डिवाइडिंग लाइन इन दो के बीच में है, तो ये भी एक ग्रुप बन गया। तो इन दो ग्रुप्स को अलग अलग सॉल्व करना है। जैसे m होता है 1000, l डिवाइडेड बाय l कितना होता है? 50। 50। तो m डिवाइडेड बाय l एक अलग ग्रुप बन गया। पहले इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करो, फिर इस ग्रुप को अलग सिंप्लीफाई करो, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना अपनी कॉपी में, और सॉल्व करके व्हाट्सएप करना। लेट मी सी Yes, कैसे किया। ओके सर। चलो, और किसी ने पूछना है कुछ? एनीवन वांट्स टू आस्क? तो मैं इसकी आज की क्लास को, अभी के तो रिकॉर्डिंग हुआ, इसको मैं बाद में YouTube पे अपलोड करूंगा, आप देख भी सकते हो। और फिर बाद में हम आपको, आज हम जो हमने फोटो खींचे गणेश नगर में, उसको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ओके, चलो फिर, देन लेट अस एंड द क्लास। ओके, बाय बाय सर। बाय। बाय सर। थैंक यू फॉर टीचिंग सर। बाय।